बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Class, so this is our first lecture on chapter number 13, current electricity, or we also call it electrodynamics, lecture number 1. So in this lecture I am going to discuss the problems on the resistance in term of temperature coefficient and resistance in term of resistivity, and I am covering all BIK pass problems in this lecture. So these are the problems which I am going to discuss in this chapter, chapter number 13. It contains all BIK pass problems of the 40 years. It has almost 20 problems over there. You can see 1 to 6 problems over there, and problem 7, 8, 9, 10. This slide contain almost 15 problems. It has few more problems over there. So these are the problems which I am going to. These are the remaining problems of the previous slides. So it has almost 20 or more than 20 problems in this chapter from the BIK pass papers and from the book. So these are the problems which I am going to discuss in this chapter. So in this lecture, lecture number 1, I am going to solve these problems 7 to problem 17. This is our lecture number 1. It contains all the problems of resistance in term of resistivity and resistance in term of temperature coefficients. So these are the few problems related to all these topics. Okay, now first of all I am going to discuss the formula. You have to note down all the formula first and their variable names. Then you have to start the numericals. So the first formula of this chapter is quantization of charge, which you have already read in the chapter number 12. Q is equal to Ne, where Q is the amount of charge, N is the number of conduction electron, and E is the charge on an electron or proton. Current, the formula of current is I is equal to Q upon D, charge per unit time, flowing of charges, flowing of electrons through any cross section area of a conductor per unit time is called current. It is measured in ampere. And the third formula is potential difference. Potential difference is the work done per unit test charge. This is a very famous law, Ohm's law. V is equal to IR, potential difference is equal to current multiplied by resistance. In this diagram you can see what happens to the resistance, voltage and current in a conductor. Voltage is source which provide to flow the charges. Resistance is the resistance or the opposition offered by the flowing of charges inside the conductor, and this flowing of charges per unit time is called current. This is our main formula. Resistance is equal to rho L over A. So resistance जो है वो rho L over A के बराबर होता है. Rho is the resistivity of a material. It depends upon the nature of a material. L is the length of a material and A is the area of a conductor or wire. So area of wire, you can also write area sometimes pi r square, because the area of cylinder is pi r square. And resistance in term of temperature coefficient. So the formula of resistance RT is the resistance at temperature T is equal to R naught. R naught means R resistance at 0 degree centigrade temperature, plus is equal to 1 plus alpha delta T. Or you can also write this formula in this form: RT is equal to R naught 1 plus alpha T, where T is the temperature or final temperature, and R naught means the resistance of a material at 0 degree centigrade, and RT is the resistance of a material at T degree centigrade. तो आर नॉट जो होता है हमारे पास वो रेजिस्टेंस होता है मटेरियल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और आर टी का मतलब होता है रेजिस्टेंस जो है मटेरियल का जिस टेम्परेचर पे बात की जा रही है, 20 पे, 50 पे, 100 पे, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं.
तो हमारी बुक में ये वाला फॉर्मूला आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी यूज़ हुआ है। ओके, इसी फॉर्मूले को वी कैन ऑल्सो राइट दिस फॉर्मूला इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी बाय रिप्लेसिंग रेजिस्टेंस विद द रेजिस्टिविटी। So RT rho T is equal to rho naught 1 plus alpha delta T. So alpha is the temperature coefficient, its unit is per degree centigrade. Alpha जो यहाँ पर temperature coefficient होता है. Okay, first of all you have to write this formula 2 to 3 times with their names. What is the name of each and every variable and what is the SI unit of each and every variable. Okay, then you have to start the numerical. Okay, in this diagram you can see what happens when the current is passing through any conductor, then some amount of heat is dissipated or energy is converted, electric energy is converted into heat energy or into any mechanical energy. So this dissipation of heat, you can write this formula of power of dissipation is P is equal to IV, where I is the amount of current and V is the potential difference applied across the ends of that conductor. You can also write this power dissipation into power loss, that P is equal to I square R. This is the amount of heat energy which is converted from electrical into any other energy, into heat energy or into light energy. So P is equal to I square R, where amount of heat lost according to the Joule's law is heat loss is equal to I square hour T. This is the amount of energy which is lost or which is converted from electrical into some other source, into light energy, into heat energy, any energy. So these are the few more formula over there. So this is our numerical problem number 7 of the lecture number 1. The resistance of a copper wire is 1.27 ohm at 20 degree centigrade. Find its resistance at 0 degree centigrade and at 100 degree centigrade. The temperature resistivity of copper is 0.0039 per degree centigrade. So in this numerical we are provided with a single resistance and we have to calculate its resistance of the copper material at 0 degree centigrade and at 100 degree centigrade. So these are the answers of this numerical. First of all, I am making this data. So the resistance at 20 degree centigrade is R20, it's 1.27 ohm. Is temperature, I write this temperature as T2 because हम T1 जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को लिखेंगे. So T2 जो है यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है and R naught resistance at 0 degree centigrade we have to find out over there. So T1 is 0 degree centigrade and moreover we have to find out over there R100, that resistance at 100 degree centigrade, and this temperature is called T3, 100 degree centigrade. There is no need to convert these temperature into Kelvin, you know very well, because here we use delta T in this formula. So in this solution for R0, you know very well, since we know the formula of resistance in term of temperature coefficient or alpha, that RT is equal to R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी के बराबर होता है. तो RT यहाँ पर जो है वो R20 बन जाएगा. पहले मैं 20 की मदद से R0 फाइंड करूँगा, फिर मैं R100 फाइंड करूँगा R0 की मदद से. सो R20 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी. इक्वेट दिस इक्वेशन फॉर R0, इट विल बिकम R20 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1. So R0 will be equal to, after placing their values, we will get our R0 1.18 ohms. तो यहाँ पे हमें R0 मिल चुका है. Now the second thing is R100. Okay, now I am write this same formula for the R100. So R100 will become equal to R0 1 plus alpha delta T. अब यहाँ पे डेल्टा टी जो है टेम्परेचर का डिफरेंस हमेशा 0 से माइनस किया जाता है. किसी भी टेम्परेचर को इसमें याद रखना है आपने इस बात को कि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है ये फॉर्मूला 0 डिग्री सेंटीग्रेड से किसी भी टेम्परेचर तक की नहीं होता है. ओके, मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को R100 इज इक्वल टू R20 1 प्लस अल्फ़ा और डेल्टा टी 100 माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बना सकते हम इसको.
इसमें इस बात का ख्याल रखना कि ये फार्मूला जो होता है वो हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से किसी टेम्परेचर तक के लिए बात की जाती है. सो R100 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. आफ्टर प्लेसिंग देयर वैल्यूज़, here initial temperature is 0 degree centigrade and final temperature is 100 degree centigrade. After placing their values, we will get our R100 is 1.64 ohms. So these are the answers of this numerical. So in problem number 9, the resistance of a tungsten wire is used in a filament of 60 watt bulb is 240 ohm. When the bulb is hot at temperature 2020 degree centigrade, what would you estimate its resistance at 20 degree centigrade? Find and the temperature coefficient of tungsten wire is 0.0046 per degree centigrade. Okay, its answer is R20 is 23.53 ohms. So in this numerical, we are provided with the power of a bulb, 60 watt bulb, and its resistance is 240 ohm. So first of all, I am making this data. Here we have to find out R20. So T2 is equal to 20 degree centigrade, and R0 is not given over there. No, R0 is given. That R0 भी हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है, और 240 ओम उसका जो है रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट एट 2020 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 240 ओम्स है. तो इसका टेम्परेचर को मैं T3 कहूँगा. डेट T3 इज़ 2020 ओम्स, 2020 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो है रेजिस्टेंस जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर नहीं गिवन, हमें फाइंड आउट करनी है. इसके साथ साथ रेजिस्टेंस जो है हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी रिक्वायर्ड होती है, वो भी गिवन नहीं है. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस मटेरियल की क्या रेजिस्टेंस है ये भी गिवन नहीं है. थर्ड थिंग, हमें इसका जो है क्या चीज़ गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है एट टेम्परेचर 2020 डिग्री सेंटीग्रेड पर. तो सबसे पहले हम इस टेम्परेचर की मदद से R0 फाइंड करेंगे, फिर उसकी मदद से हम R20 फाइंड आउट करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल. सो इन दिस सोल्यूशन for R2020, सबसे पहले हम R0 फाइंड करेंगे. फॉर R0, R2020 इज इक्वल टू R0 1 प्लस डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस एट 2020 टेम्परेचर इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा. इसका जनरल फार्मूला जो है, फिर हम इसको R0 के लिए इक्वेट करेंगे. आफ्टर प्लेसिंग देयर वैल्यूज विल गेट अवर R0 इज 23.32 ओम्स. अब हमें R0 मिल चुका है. अब हम इस फार्मूले को जो अभी हमने R2020 के लिए फार्मूला लगाया हुआ है येलो स्लाइड में, अब हम इस फार्मूले को R20 के लिए क्रिएट करेंगे. ओके, नाउ फॉर R20, सो R20 बराबर हो जाएगा अगेन इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. ये बात याद रखिए कि यहाँ पे फार्मूला जो भी बनता है किसी भी टेम्परेचर के लिए, उसका इनिशियल रेजिस्टेंस जो होता है वो R0 होता है, यानी कि रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री टेम्परेचर. ओके, तो R0 तो आपको हर न्यूमेरिकल में रिक्वायर्ड हो गई अगर आपको किसी भी मटेरियल का किसी ख़ास टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ आफ्टर प्लेसिंग द वैल्यूज़ ऑफ द R20, we will get our R20 is 25.5 ohms. This numerical is similar to numerical number 7. Okay, now problem number 11. The resistance of a platinum resistance thermometer is 200 ohms at 0 degree centigrade and 257.6 when it is immersed in a hot bath. What is the temperature of the bath? तो एक प्लेटिनियम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो 200 ओम्स है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फिर किसी
जब हमने उसको बाद में इमर्स किया हॉट किसी मटेरियल में, तो फिर उसके बाद उसका जो रेजिस्टेंस हो गया 257.6 हो चुका है। आपने वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा आपको गिवन है यहाँ पर। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। सो इन द डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल R1 भी लिख सकते हैं। R1 या R0 हमारे पास कितना है 200 ओम्स। इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। R2 जो है या फिर RT कह लें, R2 जो है हमें फाइंड आउट, R2 जो है हमें 257 गिवन है। इसका जो टेम्परेचर T2 है वो हमें फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा इज़ 0.0392 per degree centigrade over there. So now in the solution for T2, since we know using the formula of resistance in term of temperature coefficient, R2 is equal to R1 1 plus alpha delta T। ये फॉर्मूला बिल्कुल थर्मल एक्सपेंशन में जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है उसी से देख के बनाया गया है। अब हमें इस फॉर्मूले को वी हैव टू इक्वेट दिस फॉर्मूले फॉर डेल्टा टी और T2। हमें इस फॉर्मूले को अब इक्वेट करना पड़ेगा T2 के लिए। ओके, नाउ फॉर R2 is equal to 1 plus alpha T2 minus T1, इक्वेट दिस इक्वेशन फॉर R1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, सो R1 विल बी डिवाइड ओवर आफ्टर मूविंग टू द लेफ्ट हैंड साइड, -1 विल बी एड ओवर देयर इज इक्वल टू अल्फा T2 माइनस T1। दैन अल्फा यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा T2 माइनस T1। अब T1 वहाँ पर माइनस हो रहा है तो राइट साइड पे आके ऐड हो जाएगा आफ्टर प्लेसिंग देयर वैल्यूज़। तो T2 हमारे पास कितना आ जाएगा 73.5 डिग्री सेंटीग्रेड। So in this numerical you have to just equate this equation for T2 और final temperature और initial temperature। You know that initial temperature तो हमेशा इस resistance के फॉर्मूले में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। Okay, now problem number 17. A copper winding of an electric motor have resistance 50 ohm at 0 degree centigrade. After running for some time its resistance become 58 ohms. Find the temperature of winding. Its answer is 41 degree centigrade. So first of all I am making this data. So here R1 or resistance at 0 degree centigrade, R0 is 50 ohms. Its initial temperature is 0 degree centigrade, you know very well. R2 is 58 ohm. This numerical is also similar to the previous numerical, and you have to find out its temperature T2. Find the temperature of the winding at this resistance. Its alpha is 0.0039. In the solution for T2 using resistance in term of temperature coefficient, now we will equate this equation for T2 like the previous question. First of all R1 will be divided over there, then 1 will be subtracted from R2 upon R1, then alpha will be divided over there, then we add T1 on the left hand side. After placing their values we will get our T2 41.02 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस न्यूमेरिकल में भी हमारे पास जो है सेम न्यूमेरिकल था लास्ट की तरह, बस हमें T2 टेम्परेचर निकालना था। इक्वेशन को इक्वेट करने का मरहला इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, इट्स वेरी इजी। ओके, नाउ प्रॉब्लम नंबर 10। it has come in 2015. A 4 ohm resistor is to be wound with platinum wire 0.2 millimeter in diameter. How much wire is needed? And the resistivity of wire is 11 exponent minus 8 ohm meter. So here you have to find out the length of a wire. This is the answer of this numerical. So first of all I am making this data. So R is 4 ohm over there, diameter is 0.2 millimeter. First of all you have to convert this into meter by dividing with the 100, dividing with the 1000. So then millimeter is converted into 0.0002 meter, and you know very well that radius is equal to diameter divided by 2. So diameter divided by 2 is equal to 0.0001 meter, and the area of wire is pi r square,
and you have to find out the length of that wire, and the resistivity is 11 exponent minus 8 ohm meter. Okay, now in this solution you know very well that we will use the formula for resistance R. We will use the equation of R in term of resistivity. So its formula is R is equal to rho L over A, and the area is not given, so we use pi r square instead of area. And now equate this equation for L. L is equal to R pi small r square divided by resistivity. After placing their values we will get our length 1.142 मीटर. तो ये न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल था. इसमें आपने रेजिस्टेंस का सिंपल फार्मूला यूज़ किया है. रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल ओवर ए, क्योंकि टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं था. रेजिस्टेंस किसी टेम्परेचर पे नहीं निकालना आपको. तो ये रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी वाला न्यूमेरिकल है. इजी न्यूमेरिकल 2015 में आया था ये. Problem 15a, it came in 2006. A 50 ohm resistor is required from a copper wire 0.2 millimeter diameter. What is the length of wire is needed? Resistivity is given over there, and its length is 98.13 meter. This numerical is also similar to the last numerical. So data, resistance is 50 ohm, its diameter is 0.2 millimeter. You have to divide this 0.2 with the 1000, so you will get 0.22202 मीटर. मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे. फिर हम इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे. डायमीटर को 2 से डिवाइड करके इट विल बिकम 0.0001 मीटर. एरिया गिवन नहीं है, डायमीटर इसलिए दिया गया ताकि इससे आप इसका एरिया फाइंड कर सकें, क्योंकि रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में रो एल ओवर ए आता है, तो एरिया की वैल्यू गिवन नहीं है. वहाँ पे हम पाई स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे. एंड यू हैव टू फाइंड आउट इट्स लेंथ, and this is the value of resistivity. Okay, now in the solution for R, the equation of R in term of resistivity. So R is equal to rho L over A. Now place the value of area pi r square and equate this equation for L. L will become equal to capital R pi r square divided by rho. After placing their values you will get its length 98.13 meter. Okay, now note down this numerical, then you have to proceed. Okay, now problem number 12. Calculate the resistance of a copper plate of length 15 centimeter and rectangular cross section is 3 centimeter multiplied by 0.5 centimeter. And the resistivity of a plate is 1.6 exponent minus 8 ohm meter. तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 5 ओम्स है. इसका आंसर है ये. और आपको लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर और एरिया गिवन है 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 0.5 सेंटीमीटर. तो रेजिस्टेंस कितना है? क्वेश्चन मार्क. लेंथ कितनी? 15 सेंटीमीटर. इसको 100 से डिवाइड करके हमने 0.15 मीटर बना लिया. एरिया 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 0.5 सेंटीमीटर. इसको ज़रा केयरफुली देखिएगा कि एरिया को हम जब सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 100 से 2 मरतबा डिवाइड करना पड़ता है. In order to convert area from centimeter square to meter square, you have to divide this value twice time by 100. तो 3 को जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो 3 मेरे पास सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन जो 0.5 उसका वैल्यू है उसको भी मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर वो भी मीटर में कन्वर्ट होगी. नाउ फाइनली अवर एरिया विल बिकम 0.00015 मीटर स्क्वायर. बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि वो एक बार 100 से डिवाइड करते हैं और दूसरी वैल्यू को नहीं करते, जिससे उनका आंसर गलत आ जाता है. तो बी केयरफुल, यहाँ पे ज़रा ख्याल रखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस होते हैं. Okay, now its resistivity is 1.6 ohm, 1.6 exponent minus 8 ohm meter. Now in the solution, using equation of R in term of resistivity, not in temperature coefficient, हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? रेजिस्टिविटी वाला. R is equal to rho L over A. After placing their values, we will get our resistance 1.6 exponent minus 5 ohms. इसमें एरिया वाली बात जो है उसको ज़्यादा रखिएगा. एरिया में ही प्रॉब्लम होती है, वहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं.
Okay, now question 14a. It has come in 2019. A rectangular bar of iron is 2 centimeter into 2 centimeter cross section. ये इसका एरिया गिवन है and 220 centimeter long. ये इसकी लेंथ गिवन है. Find the resistance of a bar at 100 degrees 500 degrees centigrade, and if its resistivity is 11 exponent minus 8 ohm meter and its alpha is temperature coefficient is 0.0052 per degree centigrade और Kelvin. तो इस न्यूमेरिकल थोड़ा सा अच्छा है, एडवांस है. इसमें आपको पहले रेजिस्टेंस भी फाइंड करनी पड़ेगी उसके बाद रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी फाइंड करनी पड़ेगी और फिर रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड भी आपको फाइंड करनी है. तो डेटा आपको गिवन है वो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, जिस पर उसका एरिया, उसकी लेंथ आपको गिवन है और उसके टेम्परेचर कोफिशिएंट्स और रेजिस्टिविटी भी. So R at 500 is 19.8 exponent minus 5 ohms. This is the answer of this numerical. So in the data, so R 500 you have to find out over there. And the length is 20 centimeter or 0.2 meter. Its area is 2 centimeter multiplied by 2. तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे and we get 0.0004 meter square. Its resistivity is 11 exponent minus 8 ohm meter. अल्फ़ा भी गिवन है हमें इसका, टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.0052. सो इन दिस सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट आर नॉट. तो आर नॉट के लिए हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ आर इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी. आर नॉट इज इक्वल टू रो एल ओवर ए. इस पर जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगी वो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगी. इस बात का ख्याल रखिएगा. इस तरह के न्यूमेरिकल में जो डेटा गिवन होता है आपको एरिया, लेंथ, वो आर नॉट के लिए ही गिवन होता है. Okay, so after placing their values we will get our R naught 5.5 exponent minus 5 ohm. Now for R 500 solution is continued. अब हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे R 500 is equal to R naught 1 plus alpha temperature multiplied by temperature. So R 500 is equal to R naught 5.5 exponent minus 8 1 plus alpha delta t की जगह सिर्फ आपके पास 500 minus 0 यानी डायरेक्ट 500 डिग्री सेंटीग्रेड रख दें, वहाँ का इनफ है. And we will get our answer is 198 exponent minus 6 ohms. Okay, now problem 14b. A resistor is made by using 50 meter nichrome wire with 0.8 millimeter diameter at 0 degree centigrade. What is the resistance at 50 degree centigrade if the resistivity is 100 exponent minus 8 ohm meter? So this is the answer of the resistance at 50 degree centigrade. First of all I am making this data that resistance at 50 डिग्री सेंटीग्रेड आपको फाइंड आउट करना है और लेंथ गिवन है आपको, डायमीटर गिवन है निक्रोम वायर का. ये जो डेटा गिवन है आपको ये रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए गिवन है. लिखा हुआ भी इसमें कि जो उसका डायमीटर और लेंथ आपको गिवन है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गिवन है. ठीक है. सो कन्वर्टिंग डायमीटर इज 0.8 मिलीमीटर, 1000 से डिवाइड करके 0.0008 मीटर हो जाएगा ये. फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे रेडियस बनाने के लिए, तो 0.0004 मीटर इज़ द रेडियस ऑफ दिस निक्रोम वायर. इट्स एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर से निकलेगा, इसीलिए इन्होंने डायमीटर या रेडियस दिया है. इस तरह का न्यूमेरिकल हम कर भी चुके हैं अभी. एंड टेम्परेचर डिफरेंस इज T2 माइनस T1 इज़ 50 माइनस 0 डेल्टा टी. तो डेल्टा टी आपके यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप इसको डायरेक्ट टी भी रख सकते थे, और रेजिस्टिविटी 100 एक्सपोनेंट माइनस 8 ओम मीटर है. सो नाउ इन द सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज आर नॉट. सो इक्वेशन ऑफ आर इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका आर नॉट फाइंड आउट करेंगे. आर नॉट के लिए आपको रो एल्फा ए का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वेयर रो इज इक्वल टू रो की वैल्यू रखने के बाद आप लेंथ 50
मीटर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा आर नॉट इज इक्वल टू 99.5 ओम। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, आर नॉट की वैल्यू निकालने के लिए रो एल ओ अपॉन पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला रखा, उसमें वैल्यूज़ प्लेस कर दिया और हमें आर नॉट मिल गया। सो आर नॉट इज़ 99.5 ohm. Okay, but we have to find out R50. So for R50 we will use the formula of equation of R in term of resistive, in term of temperature coefficient. So in the solution for R50 we will use the equation of R in term of alpha. R नॉट के लिए हमने R in term of resistivity यूज़ किया था, लेकिन इसके लिए हम R in term of alpha यूज़ करेंगे। सो R50 जो है वो R नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी के बराबर होगा आफ्टर प्लेसिंग दियर वैल्यूज। डेल्टा टी इज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज T1 इज़ ऑलवेज 0 डिग्री सेंटीग्रेड in resistivity in temperature coefficient numericals. So after placing their values we will get our answer is 99.7 ohms. Now problem 15b. A platinum wire is 0.2 mm diameter and its length is 15 meter. Find the resistance at 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बेसिकली ये कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें हर चीज़ पूछी गई है, बिल्कुल प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह ही ये भी। आपको आर नॉट भी निकालना पड़ेगा बिकॉज आपको आर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस मालूम करना है मटेरियल का, तो आपको आर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो दीज आर द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल आर 40 and R naught, both you have to find out over there. इस length is length of a material is 15 मीटर और ये length और ये diameter जो है आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही गिवन होंगे। नहीं भी लिखा हुआ हो तो इसको याद रखिएगा कि ये जो लेंथ और डायमीटर गिवन होता है, इस पर जो आपको रेजिस्टेंस मिलता है वो R नॉट मिलता है, इनिशियल रेजिस्टेंस। तो डायमीटर को मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के बाद 1000 से डिवाइड किया हमने, 0.0002 मीटर डिवाइड, फिर हमने इसको डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 2 कर 0.0001 मीटर। एरिया इज पाई आर स्क्वायर एंड हेयर डेल्टा टी इज़ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टिविटी इज 11x-8 ओम मीटर एंड इट्स कोफिशिएंट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 0.00392 per degree centigrade. So for R naught using equation of R in term of resistivity, R naught जो है रो L ओवर A के बराबर होगा। एरिया की वैल्यू प्लेस कर दी हमने, एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। देन R आफ्टर प्लेसिंग देयर वैल्यूज वी विल गेट आवर आंसर इज R naught इज इक्वल टू 52.51 ओम। तो इस न्यूमेरिकल में भी हमने लास्ट न्यूमेरिकल के साथ सिमिलर आर नॉट की जगह रो एल ओवर ए, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर वैल्यू रख दी, वैल्यूज़ प्लेस की, प्लेस करने के बाद हमारा आर नॉट 52.51 ओम्स आ चुका है। नाउ फॉर आर 40, ओके नाउ फॉर आर 40 सोल्यूशन इज कंटिन्यूड। आर 40 के लिए हम रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ एल्फ़ा यूज़ करेंगे, R40 इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी हो जाएगा। आफ्टर प्लेसिंग देयर वैल्यूज वी विल गेट आवर R40 60.74 ओम्स। तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। Okay, now water heater that will deliver, it's a very important, very difficult numerical. Water heater will deliver 1 kilogram of water per minute. It's a problem number 8 I think is required. The water is supplied at 20 degree centigrade and output temperature is 80 degree centigrade is desired. What should be the resistance of a heating element in water if the line voltage is 220 and specific heat of water is 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर एक वाटर हीटर है जो कि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर पर मिनट डिलीवर कर रहा है, और जो उसको वाटर मिल रहा है उस हीटर को वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिल रहा है, और वो इसको जो आउटपुट पे जहाँ पे भी गर्म पानी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे जब उसको पहुँचा रहा है हीट करने के बाद, तो उसका टेम्परेचर कितना हो रहा है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। इसकी डिज़ायर्ड है कि हम चाहें कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो हीट अप कर दे ये हीटर उस पानी को।
सो व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट, तो हमें उस एलिमेंट का कितना रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा। अगर जो लाइन जो वोल्टेज अक्रॉस हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी है 220 वोल्ट, एक इलेक्ट्रिक हीटर की बात हो रही है, और वाटर की स्पेसिफिक हीट गिवन है 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो इसमें हमें जो हीटर है उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटअप करने के लिए कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा उस हीटिंग एलिमेंट का, ये हमें उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओके, नाउ इट्स आंसर इज 11.52 ohms. So first of all I am making its data. So R is equal to क्वेश्चन मार्क, सिंगल रेजिस्टेंस है तो उसको मैं सिर्फ R लिख दूंगा। इस T1 is 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इस T2 is 80 डिग्री सेंटीग्रेड, and the voltage of the line across the heater is 220 volt. Specific heat of water is 4200 जूल पर किलोग्राम, डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं, केल्विन भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि डेल्टा टी यूज़ होता है यहाँ पे। मास जो है वाटर का वो 1 किलोग्राम है, एंड टाइम जो बात की जा रही है, टाइम वाटर पर मिनट की बात की जाए तो 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। जब 60 सेकेंड रखेंगे तो अल्टीमेटली 1 मिनट की ही बात हो रही होगी। Okay, now in the solution, first of all for resistance R, so यहाँ पर हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ हो क्या रहा है कि हीट एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम पानी को हीट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो लॉस होगा वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, टोटली कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी ऑफ वाटर। हीट हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर हीट में हम हीट एनर्जी का फॉर्मूला भी हमें पता है, हीट इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज VIT, VI इज़ द पावर, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास वर्क या एनर्जी बन जाता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क इसके बराबर हो जाता है, वर्क इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू IV इंटू टाइम। तो वोल्टेज, करंट और टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड हीट एनर्जी जो वाटर की होगी वो MC डेल्टा टी के बराबर है। फ्रॉम ओम्स लॉ, हमें यहाँ पर करंट गिवन नहीं है तो हम ओम्स लॉ की मदद से करंट को वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज इस सवाल में हमें रेजिस्टेंस मालूम करना और वोल्टेज गिवन है। सो आफ्टर प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ I current, we will get V square upon RT. Now equate this equation for resistance R, तो R जो है राइट साइड पे चला जाएगा और MC डेल्टा टी डिवाइड में आ जाएगा, so the equation will become V square T upon MC डेल्टा टी. After placing their values, we will get our resistance is 11.52 ohms. तो इस सवाल को ज़रा ध्यान से करिएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर होता है, या फिर पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। इलेक्ट्रिकल पावर आएगी और टाइम आपके पास गिवन है, और जो हीट वाटर में, हीट वाटर जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, सो उसका वाटर की हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, MC डेल्टा टी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू heat energy. Okay, it's a very difficult numerical, and this numerical has also came in my BSc exam. मैंने BSc एग्ज़ाम में भी इस numerical को फेस किया था, बहुत कम आया है, 2014 और 2008 दो बार ही आया, इसके बाद फिर रिपीट नहीं हुआ ये। A rectangular iron block has a dimension 1.2 cm, 1.2 cm मल्टीप्लाई 1.5, यानी कि पहली डायमेंशन जो है 1.2 वो इसकी लेंथ है, दूसरी जो है 1.2 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है, एंड 1.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट गिवन है। एक रेक्टेंगुलर आयरन ब्लॉक की आपको डायमेंशन या उसका वॉल्यूम समझ लीजिए गिवन है। आपने मालूम क्या करना है, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द अपोजिंग स्क्वायर एंड्स और व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ द रेक्टेंगुलर फेसेस। आपने रेजिस्टेंस बतानी है उसके स्क्वायर एंड्स की और रेजिस्टेंस बतानी है उसके रेक्टेंगुलर फेसेस की। तो जिस भी फेस की हम बात करेंगे, भले स्क्वायर फेस की बात करेंगे तो स्क्वायर फेस के लिए हमें डायमेंशन 1.2 लेनी पड़ेगी एरिया के लिए,
और जो लेंथ तीसरी डायमेंशन बनेगी उसकी 1.5 बनेगी। इस न्यूमेरिकल को ज़रा ध्यान से सॉल्व करिएगा, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। रेजिस्टिविटी आपको 11x⁻⁸ ओम मीटर गिवन है। सबसे पहले इसका ये आंसर जो है हमारे पास इसके आंसर्स आ रहे हैं। इस डेटा इस L इज़ 1.2 सेंटीमीटर, इट्स ब्रेथ इज़ ऑल्सो 1.2 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज़ 1.5 सेंटीमीटर। इन सबको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 100 से डिवाइड करने के बाद। रेजिस्टेंस ऑफ स्क्वायर एस क्यू का मतलब यहाँ स्क्वायर है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ आर ई का मतलब रेक्टेंगुलर फेस। स्क्वायर फेस और रेक्टेंगुलर फेस का आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो स्क्वायर के लिए आपको पता है स्क्वायर की जो लेंथ होती है वही ब्रेथ होती है। तो यहाँ देखिए तीनों डायमेंशन में से कौन सी दो डायमेंशन सेम है, 1.2 1.2 सेम है। तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास, 1.2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.44 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि जब मैं 0.012 मल्टीप्लाई बाय 0.012 मीटर को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे इनका एरिया कितना मिल जाएगा। Okay, now in the solution for rectangle of square, S for square. So using equation of R in term of resistivity. So RS बराबर किसके हो जाएगा, रो एल आर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे अहम बात क्या है कि अगर हमें स्क्वायर का रेजिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ तो देखें बेटा, रेजिस्टेंस जब करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस तो हमें स्क्वायर फेस का चाहिए, तो स्क्वायर फेस का हम एरिया तो रख देंगे। एरिया हमने किसका रख दिया, स्क्वायर डायमेंशन का। लेकिन जाहिर सी बात है करंट जब फ्लो होगा तो पूरे वॉल्यूम में से हो रहा होगा ना, तो उसकी जो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो किस साइड पर होगी, स्क्वायर फेस में जब वो पास आउट हो रहा है तो उसको लेंथ कौन सी मिलेगी, लेंथ मिलेगी इसको तीसरी वाली। यानी कि यहाँ पर जब आप रेजिस्टेंस ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे तो एरिया तो आप स्क्वायर का रखेंगे लेकिन लेंथ आप रखेंगे रेक्टेंगल वाली। लेंथ आप कौन सी रखेंगे, जो तीसरी लेंथ होगी। स्क्वायर में आपने 1.2 तो रख दिया, 1.5 वाली लेंथ बच गई है, वो किस में आएगी, वो लेंथ की जगह पर आएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की जगह। एल आर में क्या रखेंगे आप, यहाँ पर 1.5। तो एल आर किसके बराबर होगी, डायग्राम के मुताबिक एच के, हाइट के।
सो रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय एच और एरिया किसके बराबर है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। जब वैल्यूज़ आपने रख दी तो आपको रेजिस्टेंस कितना मिल गया, 11.46 एक्सपोनेंट -6 ओम। ओके, क्योंकि जब बेटा करंट फ्लो होगा तो पूरे कंडक्टर में से होता है तो वहाँ तीनों डायमेंशन यूज़ होंगी, तो उसको लेंथ कौन सी मिलेगी, जब दोनों रेक्टेंगुलर फेसेस के अक्रॉस आप रेजिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं तो उन दोनों रेक्टेंगुलर फेसेस के दरमियान जो उस ब्लॉक की लंबाई होगी वो कौन सी होगी, 1.5 सेंटीमीटर होगी। कौन सी होगी, उसको कितनी लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी, 1.5 सेंटीमीटर का टुकड़ा उसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। स्क्वायर फेसेस के दरमियान जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, डायग्राम में भी आप चाहें तो देख लें कि एक ऊपर का स्क्वायर फेस एक नीचे का स्क्वायर फेस, इन दोनों स्क्वायर फेस के दरमियान जो उसका हाइट मिल रही है, जो उसको लेंथ मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 1.5 सेंटीमीटर मिल रही है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर कौन सी लेंथ रखी है फॉर्मूले में, 1.5। सिमिलरली फॉर रेजिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगुलर, जब हम रेक्टेंगुलर फेसेस की बात करेंगे तो एरिया तो हम कितना रख देंगे, रेक्टेंगुलर फेसेस पे अब आप आ जाएं, एक रेक्टेंगुलर फेस राइट साइड पर हो गया, एक रेक्टेंगुलर फेस लेफ्ट साइड पर हो गया, तो इन दोनों रेक्टेंगुलर फेस के दरमियान जो उसको फासला मिलेगा, कितना डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा, उसको जो लेंथ मिलेगी यहाँ पर वो कितनी मिलेगी, 1.5 मिलेगी। तो एरिया तो हमारे पास अगेन यहाँ किसका आ जाएगा, रेक्टेंगुलर का आ जाएगा। आर का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगुलर फेस इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया तो रेक्टेंगल का है लेकिन दोनों रेक्टेंगुलर फेसेस के दरमियान जो फासला है, वो डिस्टेंस है या जो लेंथ है वो कितनी है, वो 1.2 है। कितनी है वो, 1.2। तो इन सारी वैल्यूज़ को जब आप मीटर में करके रखेंगे तो आपको रेजिस्टेंस जो है वो कितनी मिलेगी अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर फेस इज़ 7.33 एक्सपोनेंट -6 ओम्स। ओके, तो जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है इसको लेंथ कम मिल रही है तो यहाँ रेजिस्टेंस कम मिलेगा, जिसकी और जो हम स्क्वायर फेसेस की बात करें तो स्क्वायर फेसेस के दरमियान जो लंबाई आ रही है, जो फासला आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसलिए स्क्वायर फेस का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और रेक्टेंगुलर फेस का रेजिस्टेंस कम होगा। ओके क्लास, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 1। यहाँ पे हमने सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क मी ऑन माई ईमेल, कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके, फॉर एनी असिस्टेंस और फॉर एनी मटेरियल you can ask me on my email address and on my WhatsApp number. Okay class, so this is the end of the lecture number 1. Thank you. Allah Hafiz.